Yeah, in today's class, what I have for you, I have Antony and Cleopatra, a well-known Roman play of William Shakespeare, and here I am with 50 MCQ, and you will get the answer also. Now Preeti has joined. Preeti, can I get your response? Are you getting my voice? Preeti? Ah, You are yes, sir. getting? Okay. That's good. So again, I would like to tell you that today I will go. Yeah, today I have 50 MCQ, and these MCQ are highly significant from the perspective of TGT, PGT, UPHESC, and UGC net. And in these 50 MCQ, you will get answers also, but answers are not explanatory answers. You will get only the right answer because we have four options. Among four options, we have to go the right answer. So in this sheet, you will cover what? You will cover 50 MCQ. Question number one: in which city does the play Antony and Cleopatra primarily begin? क्वेश्चन नंबर वन ये पूछ रहा है जो एंटनी और क्लियोपेट्रा जो प्ले है इसकी शुरुआत किस शहर से होती है? रोम से, अलेक्जेंड्रिया से, एथेंस से, सिसिली से. द राइट आंसर इज अलेक्जेंड्रिया. The play that has been written by William Shakespeare, that is the Roman play. Shakespeare has written, I think I don't know the exact number of the Roman play, but he has written some famous Roman plays. Among those famous Roman plays, Antony and Cleopatra is one of them. And here the question is what? Here the question is ki Antony and Cleopatra, that is a well-known play of William Shakespeare. Where it has the setting, means where does it starts? The play begin primarily from which city? The play begins from अलेक्जेंड्रिया. जो प्ले का शुरुआत होता है वो अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर से होता है. नंबर वन पॉइंट. क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज द नेम ऑफ एंटनीज वाइफ इन रोम एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले. कह रहे हैं कि रोम में एंटनी की वाइफ का क्या नाम है? जब प्ले की शुरुआत होती है उस समय जो एंटनी है, जो मेन कैरेक्टर है, जो मैरिड पर्सन है, उसकी वाइफ का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ हिज वाइफ, या व्हाट इज द नेम ऑफ एंटनीज वाइफ इन रोम. क्योंकि पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, यू फाइंड की theme, characters, events, setting, all these things occur in Rome. So the question is कि जो main character, the leading character, the protagonist, what is the name of his wife? Cleopatra, Octavia, Fulvia, Agrippina. That is Fulvia. The name of his wife is Fulvia. So in question number two, what do you see here? You see here कि the name of Antony's wife in Rome. The name of Antony's wife in Rome is Fulvia. Fulvia. Question number three है, who is the Roman triumvir that rules alongside Antony and Lepidus? कह रहे वह रोमन ट्रिमवीर कौन है दैट रूल्स, जो रूल करता है साथ साथ, किसके साथ साथ रूल करता है? एंटनी और लेपिडस के. Pompey, Octavius Caesar, Enobarbus, Agrippa. That is Octavius Caesar. It's the right answer, Octavius Caesar. If the question comes कि रोम में एंटनी और लेपिडस के अलावा कौन उनके समकक्ष है जो वहां पे रूल कर रहा है, तो दैट इज ऑक्टेवियस सीजर. क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट इज द नेम ऑफ क्लियोपेट्रास प्राइमरी अटेंडेंट. जो क्लियोपेट्रा की अटेंडेंट है उसका क्या नाम है? चार्मिया, इरास, डायोमीडेस, मार्डिया. चार्मिया. या एग्जैक्टली द नेम ऑफ अटेंडेंट ऑफ क्लियोपेट्रा इज चार्मिया. और जो भी ये अटेंडेंट होता है, जो उनका बहुत करीबी होता है, उनका विश्वास पात्र होता है, उसको कॉन्फिदा कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कॉन्फिदा. CONFIDANT, कॉन्फिदा. और जो है फीमेल कैरेक्टर होगा, यानी फीमेल अटेंडेंट होगा, बहुत करीब होगा, उसको कॉन्फिदी कहा जाता है. CONFIDANT, कॉन्फिदा एंड कॉन्फिदी. सो आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लियोपेट्रास प्राइमरी अटेंडेंट. द नेम ऑफ क्लियोपेट्रास प्राइमरी अटेंडेंट इज चार्मिया. उसका नाम क्या है? चार्मिया है. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्लियोपैट्रा सेंड टू एंटनी टू टेस्ट हिज लव अर्ली इन द प्ले। क्लियोपैट्रा क्या भेजती है एंटनी के पास अपने लव को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए प्ले की शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज क्लियोपैट्रा सेंड, क्लियोपैट्रा क्या भेजती है टू एंटनी, एंटनी के पास टू टेस्ट हिज लव, लव को टेस्ट करने के लिए अर्ली इन द प्ले। अ रिंग, a letter, a false report of her death. Yes, C is the right answer. She doesn't send any ring, any letter, any pearl, but a false report of her death. वह एक झूठी सूचना भेजती है क्लियोपैट्रा एंटनी के पास कि वह मर चुकी है। A false report of her death. Question number 6 है, which character delivers the famous speech descending Cleopatra's barge? कह रहे हैं कि वो कौन कैरेक्टर है जो फेमस स्पीच को डिलीवर करता है, सुनाता है ऑडियंस को जब क्लियोपैट्रा अपनी छोटी बोट से उतरती है। विच कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर डिलीवर करता है द फेमस स्पीच को डिसेंडिंग क्लियोपैट्रास बार्ज, जबकि डिस्क्राइबिंग क्लियोपैट्रास बार्ज, जो क्लियोपैट्रा की बार्ज को, बोट को डिस्क्राइब करता है। Antony, Enobarbus, Octavius, Agrippa. That is Enobarbus. Enobarbus is a character who describes या who delivers the famous speech in which it has been told that कि जो क्लियोपैट्रा है, she descends from her barge. Barge is small boat. Question number 7 है, what is the name of the battle where Antony faces Octavius at sea? उस बैटल का क्या नाम है, युद्ध का क्या नाम है, वेयर एंटनी, जहां पर एंटनी फेसेस, सामना करते हैं ऑक्टेवियस को एट सी, सी में, जहां पे एंटनी का सामना होता है ऑक्टेवियस से समुद्र में। बैटल ऑफ फिलिप्पी, बैटल ऑफ एक्टियम, बैटल ऑफ अलेक्जेंड्रिया, बैटल ऑफ फार्सेलस। So this is battle of Actium. Answer B is the right answer. Battle of Actium. Again I would like to tell you what, again I would like to tell you question number 7. In question number 7 it has been asked what is the name of the battle, battle का क्या नाम है, where Antony faces Octavius, जहां एंटनी ऑक्टेवियस का सामना करती एट सी, समुद्र में, that is battle of Actium. Question number 8 है, why does Antony decide to fight at sea during the battle of Actium? एंटनी क्यों डिसाइड करते हैं टू फाइट एट सी, कि वह समुद्र में ही रह करके फाइटिंग करेंगे, युद्ध करेंगे ड्यूरिंग द बैटल ऑफ एक्टियम, जबकि बैटल का एक्टियम चल रहा है। बैटल ऑफ एक्टियम जो है, जब वो चल रहा है तो एंटनी क्यों डिसाइड करते हैं कि वह फाइटिंग करेंगे, समुद्र में ही करेंगे? टू फॉलो क्लियोपैट्रास एडवाइस, वो क्लियोपैट्रा के सलाह को मानते हैं। टू प्रूव हिज नेवल स्ट्रेंथ, वह अपने जो है जहाजी बेड़े की शक्ति को दर्शाना चाहते हैं। बिकॉज ऑक्टेवियस चैलेंजेस हिम, ऑक्टेवियस उनको चैलेंज करते हैं। एंड द टू प्रोटेक्ट अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। नो, टू फॉलो क्लियोपैट्रास एडवाइस, वो क्लियोपैट्रा की सलाह को मानते हैं। बिकॉज ही वॉज इन लव विथ क्लियोपैट्रा, दो ही वॉज अ मैरिड मैन, his wife name is Fulvia, but he is engaged with Cleopatra, who is the queen of Egypt. So Cleopatra advises him to fight at sea. तो क्लियोपैट्रा के एडवाइस को मान करके वो समुद्र में लड़ाई, जो बैटल ऑफ वहां पे चल रहा था एक्टिवियम का, वो समुद्र में उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होता है कि व्हाट डज क्लियोपैट्रा डू, क्लियोपैट्रा क्या करती है ड्यूरिंग द बैटल ऑफ एक्टियम, बैटल ऑफ एक्टियम के समय, दैट अफेक्ट द आउटकम, जो पूरे के पूरे उस आउटकम, रिजल्ट को प्रभावित करता है। शी लीड्स हर ट्रूप्स टू विक्ट्री, वह अपनी सेना को जो भेजती है विजय के लिए। शी फ्लीज विद हर शिप्स, वह अपने जहाज से भाग जाती है। शी निगोशिएट्स अ ट्रू, शी निगोशिएट्स अ ट्रू, वह निगोशिएट करती है। शी सेंड्स अ रेनफोर्समेंट, वह अपने जो है सेना को भेजती है। नो, शी फ्लीज हर विद हर शिप्स, जबकि उसने सलाह दिया था, किसको सलाह दिया हुआ था? शी गेव एडवाइस टू एंटनी दैट यू मस्ट फाइट एट सी, सी में जो है वहां पे आपको फाइट करना चाहिए। लेकिन जब मौका आता तो वह खुद अपने जो है बोट से या शिप से चली जाती है।
इससे पूरे युद्ध का रिजल्ट प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज एंटनीज लॉयल लेफ्टिनेंट हु इवेंचुअली डिजर्ट्स हिम। कह रहे एंटनी का सबसे वफादार लेफ्टिनेंट कौन है जो कि ड्रामा के अंत में या फाइनली उसको छोड़ देता है। डेजर्ट माने यहाँ पे छोड़ना है, और एक डेजर्ट दैट इज मरुस्थल DESEART, बट हियर द स्पेलिंग इज DESERT। डेजर्ट माने टू लीव। हु इज एंटनीज लॉयल लेफ्टिनेंट, एंटनी का लॉयल लेफ्टिनेंट कौन है। हु एवेंचुअली डेजर्ट्स हिम, उसको छोड़ देता है। व्हेन टीडियस इनोबार्बस, इनोबार्बस इज द loyal lieutenant of Antony who leaves him eventually. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज एंटनी गिव टू क्लियोपैट्रा। एंटनी क्या देता है क्लियोपैट्रा को एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में अर्ली इन द प्ले की शुरुआत में। अ क्राउन, टेरिटरीज इन द ईस्ट, अ रोमन विला, अ फ्लीट ऑफ शिप। नो, टेरिटरीज इन द ईस्ट, वह ईस्ट में जो है उसको कुछ टेरिटरीज, कुछ जमीन देता। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, टेरिटरीज इन द ईस्ट। व्हाट डज एंटनी गिव, एंटनी क्या देता है टू क्लियोपैट्रा, क्लियोपैट्रा को एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में अर्ली इन द प्ले की शुरू में, दैट इज टेरिटरीज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑक्टेवियस सीजर सिस्टर। ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर का क्या नाम है। हु एंटनी मैरीज, जिसकी शादी एंटनी से होती है। फुल्विया, ऑक्टेविया, आर्टिया, लीविया। ऑक्टेविया, it's a very important question, it has been asked in so many examinations, especially TGT, PGT and UGC net also. So here I would like to tell you what, I would like to tell you कि जो ऑक्टेवियस है उसकी बहन का नाम ऑक्टेविया था, और ऑक्टेविया की मैरिज किससे हुई है, एंटनी से हुई। और एंटनी की एक वाइफ पहले से जिसका नाम फुल्विया है, और एंटनी ऑलरेडी इंगेज है, किसके साथ इंगेज है, क्लियोपैट्रा के साथ इंगेज। सो दीज पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, these points you have to remember। ऑक्टेविया किसकी पत्नी है, ऑक्टेवियस सीजर की ऑक्टेविया किसकी पत्नी है, एंटनी की पत्नी। किसकी बहन है, ऑक्टेवियस सीजर की बहन है। फिर उसके बाद जो है एंटनी की फर्स्ट वाइफ कौन है, फुल्विया, रोमन वाइफ है। और एंटनी किसके साथ इंगेज है, क्लियोपैट्रा के साथ इंगेज है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई डज एंटनी रिटर्न टू क्लियोपैट्रा आफ्टर मैरिंग ऑक्टेविया। कह रहे हैं कि एंटनी क्यों क्लियोपैट्रा के पास वापस आ जाता ऑक्टेविया से मैरिज करने के बाद। ऑक्टेविया किसकी सिस्टर है, ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर है। ऑक्टेवियस बिट्रेज हिम, ऑक्टेवियस उसको धोखा देती है। हिज लव फॉर क्लियोपैट्रा इज टू स्ट्रांग, यस दिस इज द राइट आंसर। वह लव में इतना, उसके अंदर इतना पागलपन है लव में, किसके लिए, क्लियोपैट्रा के लिए। वो अपनी पहली पत्नी फुल्विया, दूसरी पत्नी ऑक्टेविया, इन सबको कोई तरजीह नहीं देता। ही डजंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दीज टू वाइफ्स, बल्कि वह क्या, ही इज इन लव विद हुम, ही इज इन लव विद द क्वीन ऑफ इजिप्ट। मिस्र की जो महारानी है, मिस्र की जो राजकुमारी है क्लियोपैट्रा, उसके साथ वह लव में है, और उसको पाने के लिए वह अपनी सारी चीजों को, इवन ही इज रेडी टू गिव अप द यू कैन से कि द होल किंगडम, द रोम, वो रोम को भी छोड़ने को तैयार है। दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। और यहाँ पे यही दो चीजें दिखाई गई है, द ड्यूटी ऑफ एंटनी फॉर द नेशन एंड द पर्सन whom he loves। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच कैरेक्टर इज द सूदसेयर हु वांट्स एंटनी अबाउट ऑक्टेवियस। करें वो कौन सा पर्सन है जो सूदसेयर है। सूदसेयर किसे कहा जाता है, जो कुछ कहता है, सूदसेयर जो वार्न करता है, कुछ विस्पर करता है, वार्न करता है। हु वांट्स जो चेतावनी देता है, या चेतावनी देने का मतलब यहाँ पे उसको आगाह कराता, किस चीज से आगाह कराता, खतरे से आगाह कराता है अबाउट ऑक्टेवियस सीजर की। ऑक्टेवियस सीजर से काफी बड़ा खतरा है, किसको खतरा, एंटनी को। ये बात कौन कहता है, मार्डियान कहता है, डायोमीडेस कहता है, सूद से शेयर, ये बात खुद सूसेयर कैरेक्टर है उसमें। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो सूद सेइंग का काम करता है, जो एक तरह से विस्परिंग का काम करता है, और साथ ही साथ उस विस्परिंग में वह आगाह करता है कि यू हैव टू व्हाट, यू हैव अ डेंजर टू whom you have a big danger to ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर से आपको सावधान रहना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज क्लियोपैट्रा डिमांड फ्रॉम एंटनी। क्लियोपैट्रा क्या डिमांड करती है एंटनी से, टू प्रूव हिज लॉयल्टी आफ्टर एक्टियम, अपनी लॉयल्टी को सिद्ध करने के लिए
एक्टियम के बाद। व्हाट डज क्लियोपैट्रा डिमांड, क्लियोपैट्रा क्या डिमांड करती है फ्रॉम एंटनी, एंटनी से, टू प्रूव हिज लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी को या उसकी लॉयल्टी को पता लगाने के लिए, आफ्टर एक्टियम, जब एक्टियम का बैटल हो जाता है। हिज स्वॉर्ड, वह उसके स्वॉर्ड की डिमांड करती है। हिज एलिजियस टू इजिप्ट, हिज रिटर्न टू रोम, हिज पब्लिक एपोलॉजी। नो, वो डिमांड करती है कि तुम्हें कहाँ पे रहना है, एलिजियस टू इजिप्ट, तुम्हें मिस्र में ही रहना है, तुम्हें जो है क्या करना है, एक तरह से मिस्र की भी हिफाजत करनी है। नाउ मिस्र इज योर्स, दो यू बिलोंग टू रोम, बट योर वाइफ बिलोंग्स टू, योर बिलव बिलोंग्स टू इजिप्ट, तो आपको इजिप्ट को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट एनिमल इज यूज्ड टू किल क्लियोपैट्रा एट द एंड ऑफ द प्ले, किस एनिमल का यूज किया जाता है क्लियोपैट्रा को मारने के लिए प्ले के एंड में, वाइपर का, आस्प का, स्कॉर्पियन का, कोबरा का। नो, आस्प का यूज किया जाता है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु ब्रिंग द आस्प टू क्लियोपैट्रा, कौन आस्प लाता है क्लियोपैट्रा के लिए, अ रोमन सोल्जर, अ क्लाउन, क्लाउन लाता है, एग्जैक्टली बी इज द राइट आंसर, अ क्लाउन ब्रिंग्स आस्प टू क्लियोपैट्रा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज एंटनी बिलीव हैज हैपेंड, व्हाट डज एंटनी बिलीव हैज हैपेंड टू क्लियोपैट्रा बिफोर हिज डेथ, एंटनी क्या विश्वास करता है क्लियोपैट्रा के मरने से पहले, शी हैज बिट्रेड हिम टू ऑक्टेवियस, कि उसने जो है धोखा दिया ऑक्टेवियस को, शी हैज डाइड, वह मर चुकी है, शी हैज फ्लेड टू रोम, वह रोम जा चुकी है, शी हैज सरेंडर, उसने सरेंडर कर दिया, नो, वह सोचता है कि वह मर गई है और इसी वजह से वह उसके पास आता है और खुद को भी खंजर स्टैब कर लेता है और मर जाता है उसके डेड बॉडी के बगल ही, जबकि वो मरी नहीं रहती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, वह सोचता है कि क्लियोपैट्रा इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड क्लियोपैट्रा कमिटेड सुसाइड, ही थिंक्स, लेकिन क्लियोपैट्रा वाज अलाइव, ही कम्स एंड स्टैब्स हिज डैगर, ultimately Cleopatra finds that ki Antony is no more in this world, then what happens, she takes the cup of the poison. How does Antony died, Antony कैसे मरता है, इस पॉइजन, इसको जहर दिया जाता है, he falls on his sword, वह खुद अपने तलवार से आत्महत्या कर लेता है, yes he falls on his sword, वह अपने तलवार से अपने आप को मौत के घाट उतार देता है। उसको ये पता चलता है या वो सोचता है कि क्लियोपैट्रा इज नो मोर दिस इन दिस वर्ल्ड, क्लियोपैट्रा कमिटेड सुसाइड and he thinks that without Cleopatra he can't remain alive, therefore what he commits suicide. Question number 20 है, what does Cleopatra do to avoid being paraded in Octavia's triumph, क्लियोपैट्रा क्या करती है बचने के लिए being paraded, कि उसको परेड उसका ना हो ऑक्टेवियस के ट्रिम्फ में, जब ऑक्टेवियस जीत जाता है, जब ऑक्टेवियस जीत जाता है तो वह सोचती है कि क्या किया जाए कि उसको जो है उसको परेड में ना जाना पड़े, किसके परेड में ना जाना पड़े, ऑक्टेवियस के विजय में। शी एस्केप टू ग्रीस, वह ग्रीस भाग जाती है, शी किल्स हरसेल्फ, वह अपने आप को मार डालती है, शी किल्स हरसेल्फ, वह सोचती है कि अब तो मेरा हस्बैंड भी नहीं रहा, ऑक्टेवियस सीजर को विजय प्राप्त हो गई है, तो ऑक्टेवियस सीजर क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने दुश्मन के जो है किसमें जाना पड़ेगा, मुझे अपने दुश्मन के, कह सकते हैं कि उसके अपने कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे मेरी परेड होगी, तो वो नहीं चाहती उसका वहां परेड हो, दुश्मन उसको अपमानित करे या दुश्मन दावा करे कि क्लियोपैट्रा मेरी है, इस तरह की चीजें, तो उसने खुद ही क्या किया, सुसाइड कर लिया। Which character describes Cleopatra as a loss of unparalleled, कौन सी सा कैरेक्टर डिस्क्राइब करता है कि क्लियोपैट्रा एक ऐसी लड़की है जो अपने में अद्वितीय, लास्ट अनपैरेलल्ड, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, एंटनी, चार्मिया, इनोबार्बस, ऑक्टेवियस, चार्मिया, इट हैज बीन सेड बाय हूम, इट हैज बीन सेड बाय चार्मिया। चार्मिया ये कहता है कि क्लियोपैट्रा एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी औरत जो अपने में अनपैरेलल्ड है, उसके समकक्ष कोई नहीं है, शी इज मैचलेस, शी इज यूनिक, शी इज इनकम्पेरेबल। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंटनी एंड ऑक्टेवियस, एंटनी और ऑक्टेवियस के बीच युद्ध का मुख्य कारण क्या है, दियर राइवलरी फॉर क्लियोपैट्रा, उनका जो राइवलरी है क्लियोपैट्रा के लिए, देयर कंपटीशन फॉर पावर इन रोम, उनका कंपटीशन है, यस बी इज द राइट आंसर,
एंटनी और ऑक्टेवियस, जो ऑक्टेवियस सीजर है, उनके बीच में लड़ाई का मुख्य कारण यही है कि रोम का असली वारिस कौन है, रोम पे कौन रूल करेगा, यही एक मैटर है दोनों के बीच लड़ाई का। और वो इस चीज को जो है आपस में भिड़े हुए हैं। तो उनका कंपटीशन है क्या, फार पार इन रोम, रोम में अपनी शक्ति प्रदर्शन का, रोम में सत्ता स्थापित करने का, रोम सेंट्रिक होने का, इसको लेकर के लड़ाई है। देयर कंपटीशन फॉर पार इन रोम। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज इनोबार्बस रिग्रेट, इनोबार्बस किस चीज पर पश्चाताप करता है आफ्टर डिसर्टिंग एंटनी, एंटनी को छोड़ने के बाद। लॉसिंग हिज ऑनर, उसको लगता है उसने अपना सम्मान खो दिया। लीविंग क्लियोपैट्रा, उसको लगता है उसने क्लियोपैट्रा को छोड़ दिया। बिट्रेइंग ऑक्टेवियस, उसने ऑक्टेवियस को धोखा दिया। एबंडनिंग रोम, नो लॉसिंग हिज ऑनर, उसको लगता है कि उसने अपना सम्मान खो दिया। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट डज क्लियोपैट्रा यूज टू एडॉर्न हरसेल्फ बिफोर हर डेथ, क्लियोपैट्रा क्या करती अपने आप को एडॉर्न करने के लिए, सजाने के लिए, मरने से पहले क्लियोपैट्रा सजने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए किन गहनों का या किन चीजों का इस्तेमाल करती है। अ क्राउन एंड जीवेल, वह मुकुट धारण करती है और आभूषण पहनती है। हर रॉयल रॉब्स, वह अपने राजशाही कपड़े को लेती है। एंटनीज आर्मर, एंटनी के कवच को लेती है। हर रॉयल रॉब, बी इज द राइट आंसर, वह अपने राजशाही कपड़ों को ग्रहण करती है या उसको धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु इज द रोमन जनरल दैट डिफीट्स पॉम्पेज फोर्सेस, उस रोमन जनरल का नाम जिसने पॉम्पे की सेना को पराजित किया। एंटनी, वेंटिडियस, अग्रियप्पा, डोलाबेला। नो, दैट इज वेंटिडियस, वेंटिडियस ने पॉम्पे की शक्ति को पराजित किया, उसकी सेना को पराजित किया, वेंटिडियस। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज क्लियोपैट्रा क्लेम, क्लियोपैट्रा क्या दावा करती है अबाउट हर इंटेंशंस व्हेन क्वेश्चन्ड बाय ऑक्टेवियस, कह रहे हैं कि क्लियोपैट्रा क्या दावा करती है, व्हाट डज क्लियोपैट्रा क्लेम अबाउट हर इंटेंशंस, अपने इंटेंशंस को, अपने इरादों को, व्हेन क्वेश्चन्ड बाय ऑक्टेवियस, जब ऑक्टेवियस से क्वेश्चन किया जाता है। शी वांट्स टू रूल रोम, वह रोम पर शासन करना चाहती है। शी प्लान टू बीट्रे एंटनी, उसने प्लान बनाया कि वह एंटनी को धोखा देगी। शी विशेस टू लिव क्वाइटली, वह चुपचाप रहना चाहती है। शी लव्स ऑक्टेवियस, वो ऑक्टेवियस को प्यार करती है। नो, शी इज द राइट आंसर, शी विशेस टू लिव क्वाइटली। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, व्हाट डज क्लियोपैट्रा क्लेम, क्लियोपैट्रा क्या दावा करती है अबाउट हर इंटेंशन, उसका इरादा क्या है, व्हेन क्वेश्चन बाय ऑक्टेवियस, जब ऑक्टेवियस के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस सीजर और ऑक्टेविया दो कैरेक्टर, ऑक्टेविया सिस्टर ऑफ ऑक्टेवियस सीजर, वाइफ ऑफ एंटनी, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेवियस आया है, ऑक्टेवियस सीजर। जब ऑक्टेवियस सीजर से क्वेश्चन कहता है तो क्लियोपैट्रा क्या कहती है, वो कहती है कि वह चुपचाप रहेगी। शी विशेस टू लिव क्वाइटली, वह चुपचाप रहेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच कैरेक्टर इज सेंट बाय ऑक्टेवियस टू नेगोशिएट विद क्लियोपैट्रा, कौन सा कैरेक्टर भेजा जाता ऑक्टेवियस सीजर के द्वारा क्लियोपैट्रा से बातचीत करने के लिए। डोलाबेला, प्रोक्यूलियस, थीडियास, अग्रियप्पा। प्रोक्यूलियस, या बी इज द राइट आंसर, प्रोक्यूलियस। जिस कैरेक्टर को भेजा जाता है उसका नाम है प्रोक्यूलियस। सो रिमेंबर दैट ऑक्टेवियस जिस कैरेक्टर को भेजता है बातचीत करने के लिए क्लियोपैट्रा से, उसका नाम क्या है, प्रोक्यूलियस है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट डज एंटनी कॉल क्लियोपैट्रा इन अ मोमेंट ऑफ एंगर आफ्टर एक्टियम, कह रहे कि एंटनी क्या कहता है क्लियोपैट्रा से इन अ मोमेंट ऑफ एंगर, जब वह काफी गुस्से में है, आफ्टर एक्टियम, एक्टियम युद्ध के बाद। अब क्वीन ऑफ वर्च्यू, फिर से मेरे क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट डज एंटनी कॉल, एंटनी क्या कहता है क्लियोपैट्रा से इन अ मोमेंट, एक क्षण, जब वह गुस्से में है, आफ्टर एक्टियम, एक्टियम बैटल के बाद। अब क्वीन ऑफ वर्च्यू, कि तुम क्वीन ऑफ वर्च्यू हो। A tipple turned whore, it's a very significant point, a tipple turned whore, तुम जो है बदलती हुई वेश्या हो, जो अपने रंग को बदलती हो, whore, WHOR, a tipple, it's not my words because being a teacher I don't have to use this word, but I have to tell you the right option and what has been said by Antony to Cleopatra। वो मुझे पढ़ाना इसलिए मैं ये वो शब्द यूज कर रहा हूँ, otherwise being a teacher या being a student we don't have to use these words।
क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉम्पेस सन? पॉम्पे के सन का क्या नाम है? हु चैलेंजेस द ट्रिम वायरस, जो कि ट्रिम वायरस को पराजित करता है? जेक्सस पॉम्पे, जेनियस पॉम्पे, मीनास, मिंक्राटिस, दैट इज जेक्सस पॉम्पे। ये इज द राइट आंसर। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉम्पेस सन? पॉम्पे के बेटे का क्या नाम है? हु चैलेंजेस द ट्राइम वायरस, जो कि चैलेंज करता है ट्राइम वायरस को, जो है हु इज दैट? दैट इज सेक्टस पॉम्पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डज क्लियोपैट्रा डू? क्लियोपैट्रा क्या करती है? व्हेन थीडियस ट्राइज टू परsuade her to join Octavius, she agrees immediately, she has him whipped, she kills him, she ignores him. What does Cleopatra do? Cleopatra क्या करती है? When Theseus tries to persuade her, जब थीडियस उसका पीछा करता है, टू ज्वाइन ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस को ज्वाइन करने के लिए, कि तुम ऑक्टेवियस से समझौता कर लो, इस पर वह क्या करती है? शी एग्रीज, वह सहमत हो जाती है। नो, शी हैज हिम व्हिप्ड, वह उसको कोड़े से मारती है और कहती है मैं कभी भी ऑक्टेवियस सीजर से कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच कैरेक्टर इज द यनक इन क्लियोपैट्रास कोर्ट? वह कौन सा कैरेक्टर जो यनक है क्लियोपैट्रा की कोर्ट में? मार्डियन, डायोमिडेस, अलेक्सियस, सेल्यूकस, दैट इज मार्डियन। आंसर ए इज द राइट आंसर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच कैरेक्टर इज अ यनक? यनक ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, कौन सा वो कैरेक्टर है जो कि ट्रांसजेंडर है या हिजड़ा है क्लियोपैट्रा के दरबार में, क्लियोपैट्रा के कोर्ट में? दैट इज मार्डियन। ये इज द राइट आंसर। दिस कैरेक्टर हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट डज एंटनी आस्क इरोस टू डू बिफोर हिज डेथ? एंटनी क्या पूछता है इरोस से टू डू, करने के लिए, बिफोर हिज डेथ, अपने मौत से पहले? किल हिम, वह कहता मुझे मार दो। प्रोटेक्ट क्लियोपैट्रा, क्लियोपैट्रा की हिफाजत करना। डिलीवर अ मैसेज टू ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस को यह मैसेज आपको देना है। लीड्स हिज ट्रूप्स, उसे अपनी सेना को आगे बढ़ो। वो कहता है कि मुझे तुम मार देना, जो है कुछ भी होने से पहले, तुम्हारी डेथ होने से पहले तुम्हें क्या करना? मुझे खत्म कर देना। मैं इस आई डोंट वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट डज क्लियोपैट्रा फियर? क्लियोपैट्रा को डर किस चीज का? मोस्ट अबाउट बीइंग कैप्चर्ड बाय ऑक्टेवियस, कह रहे कि उसको किस चीज का डर है? कि वह ऑक्टेवियस के द्वारा पकड़ ली जाएगी, या पकड़े जाने के बाद या उसके कैद में अगर जाती है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी? लॉसिंग हर वेल्थ, वो अपनी धन को खो देगी। बीइंग परेडेड इन रोम, यस, उसको डर है कि अगर ऑक्टेवियस सीजर उसको पकड़ लेगा तो पूरे रोम में उसको घुमाएगा, उसका परेड कराएगा। इसी वजह से वह, जब ऑक्टेवियस सीजर जीत जाता है, एंटनी हार जाता है, तो क्लियोपैट्रा खुद आत्महत्या कर लेती है। वो नहीं चाहती कि रोम में उसका परेड कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच कैरेक्टर वार्न्स क्लियोपैट्रा दैट ऑक्टेवियस प्लान्स टू टेक हर टू रोम? कौन सा कैरेक्टर उसको चेतावनी देता है, किसको? क्लियोपैट्रा को, कि ऑक्टेवियस प्लान्स, ऑक्टेवियस ने प्लान बनाया टू टेक हर टू रोम, कि वह उसको रोम ले जाएगा अगर वह जीत लेता है। डोलाबेला, प्रोक्यूलियस, अग्रियप्पा, गैलस, या डोलाबेला? डोलाबेला वार्न्स की वह उसको रोम लेके चला जाएगा अगर वह जीतता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट डज एंटनी कंपेयर? एंटनी अपनी तुलना किससे करता है? हिमसे, खुद का। टू व्हेन ही फील्स बिट्रेड बाय क्लियोपैट्रा, जब उसको लगता है कि क्लियोपैट्रा ने उसको धोखा दिया। अ फॉलन गॉड, अ क्लाउड दैट डिसॉल्व्स, अ ब्रोकन स्वॉर्ड, अ डाइंग लाइफ, अ क्राउड दैट डिसॉल्व्स। या दिस इज द राइट आंसर। उसको लगता है कि वह उस बादल के समान है जो पिघल गया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसने अपने अस्तित्व को खो दिया है। उसको ये लगता है कि क्लियोपैट्रा के लिए मैंने रोम को छोड़ा, मैंने अपना जो है साम्राज्य त्यागा, मैंने जो है क्लियोपैट्रा के लिए मैंने अपने सारे रिलेशन, फर्स्ट वाइफ, सेकेंड वाइफ, एवरीथिंग आई लेफ्ट फॉर क्लियोपैट्रा। लेकिन क्लियोपैट्रा ने जो क्या किया, मुझे कोई चांस नहीं दिया और उसने मुझे छोड़ दिया। तो इस दर्द का एहसास वह किस तरह से कराता? अ क्लाउड दैट डिसॉल्व्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोन्यूमेंट वेयर क्लियोपैट्रा हाइड्स आफ्टर एंटनीज डेथ? उस स्मारक का क्या नाम है? वेयर क्लियोपैट्रा, जहां पर क्लियोपैट्रा हाइड्स, छुपी है, आफ्टर एंटनीज डेथ, एंटनी की मौत के बाद। द टॉम्ब, द माउसोलियम,
द मोन्यूमेंट, द पिरामिड, द मोन्यूमेंट, या इट्स द राइट आंसर। एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उस मोन्यूमेंट का क्या नाम, उसका मोन्यूमेंट का नाम मोन्यूमेंट ही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट का क्या नाम है। वेयर क्लियोपेट्रा हाइड, जहां पर क्लियोपेट्रा छुपती है आफ्टर एंटनीज डेथ, एंटनी की मौत के बाद। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ डज एनोबार्बस डाई, एनोबार्बा की मौत कैसे होती है। इन अ बैटल, बैटल में, बाय सुसाइड, सुसाइड में, ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। यस इज द राइट आंसर, ब्रोकन हार्ट से, उसका हार्ट अटैक से उसका मौत होता है। किसका, इनोबार्बस का। इनोबार्बस बहुत करीबी है, किसके करीबी है, बहुत ही वफादार है, बहुत ही करीबी है एंटनी के। उसका मौत कैसे होता है, हार्ट अटैक से। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट डज क्लियोपेट्रा कॉल हरसेल्फ इन हर फाइनल मोमेंट्स, क्लियोपेट्रा जीवन के अंतिम क्षण में अपने आप को क्या कहती है, किस नाम से पुकारती है। क्वीन ऑफ इजिप्ट, एंटनीज वाइफ, इमॉर्टल गॉडेस, सर्पेंट ऑफ द नाइल। नो, एंटनीज वाइफ, वह एंटनी की वाइफ होकर के मरना चाहती थी और अपने आप को मरते समय कहती आई एम द वाइफ ऑफ एंटनी। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट डज ऑक्टेवियस प्लान टू डू विद क्लियोपेट्रा आफ्टर हर कैप्चर। ऑक्टेवियस क्या प्लान करता है करने के लिए विद क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा के साथ, आफ्टर हर कैप्चर, अगर वह उसको कैप्चर कर लेता है, मतलब जब वह युद्ध जीत जाएगा तो जीती हुई जितनी भी चीजें सब उसकी हो जाएंगी। और अगर वह जो है क्लियोपेट्रा को कैप्चर करेगा तो क्या करेगा, मेक हर क्वीन ऑफ इजिप्ट, वह उसको जो है मिस्र की रानी बनाएगा। परेड हर इन ट्रिप, विजय के पश्चात वह उसका परेड कराएगा। पहले से उसका इरादा है कि अगर मैंने एंटनी को पराजित किया और युद्ध में मैंने जीता, किसको मैंने जीता, इफ आई विंस क्लियोपेट्रा, तो क्लियोपेट्रा विल बी पैरेडेड इन रोम, क्लियोपेट्रा का परेड कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच कैरेक्टर इज क्लियोपेट्रास ट्रेजरर, क्लियोपेट्रा की वो कौन सी कैरेक्टर जो क्लियोपेट्रा की खजांची है। क्वेश्चन अबाउट हर वेल्थ, जो उसके जो है धन को लेकर क्वेश्चन करती है। सेलिकस, एलिक्सास, डायोमीडास, मार्डियान। सेलिकियस, सेलिकियस उसका जो है खजांची है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट डज एंटनी से, एंटनी क्या कहते हैं अबाउट हिज फेट इन रिलेशन टू क्लियोपेट्रास चार्म, एंटनी क्या कहते हैं अपने भाग्य को लेकर के, जब उनका अपना जो है क्लियोपेट्रास का एक उनके क्लियोपेट्रा के प्रति उनका आकर्षण है, लगाव है, उस चीज को क्या कहते हैं। आई एम हर फूल फॉर एवर, her charm has undone me, I'm tied to her chariot, I made these wars for her। yeah exactly, it's the right answer। और स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा है, मैंने जीवन के जो भी इस समय ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मैं केवल क्लियोपेट्रा के लिए लड़ रहा हूँ। कह रहे हैं कि क्लियोपेट्रा का चार्म इतना ज्यादा है, उसका आकर्षण इतना ज्यादा है कि उसको देख करके जो है एंटनी ने क्या कहा, एंटनी ने कहा कि दुनिया की हर लड़ाई या जीवन की सारी लड़ाई मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, क्लियोपेट्रा के लिए लड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट डज क्लियोपेट्रा से, क्लियोपेट्रा क्या कहती है अबाउट एंटनी, एंटनी के बारे में, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद। द क्राउन ऑफ द अर्थ डॉथ मेल्ट, यस दिस इज द राइट आंसर। और किसी में नहीं जाना, इज द राइट आंसर। दुनिया का जो क्राउन था, क्राउन का मतलब राजा, दुनिया का जो राजा था, आज वह मिट्टी में मिल गया। जो वो कहती है उसको बहुत बड़ी पदवी देती है, वो नहीं कहती रोम का राजा, यूरोप का राजा, बल्कि वो कहती है दुनिया का राजा, राजा अर्थ का राजा मिट्टी में मिल गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटनी और क्लियोपेट्रा का प्राइमरी थीम क्या है, मुख्य थीम क्या है। तो इफ यू गो विद द क्वेश्चन की व्हाट इज द प्राइमरी थीम एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, you find that the primary theme of Antony and Cleopatra is revenge and betrayal, love versus duty। yeah this is the right answer, love versus duty। और ये चीज आपको कहाँ पे और देखने को मिलेगा, जॉन ड्राइडेन का ऑल फॉर लव जो प्ले है, जो हीरोइक ट्रेजेडी है, वो शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपेट्रा पर ही आधारित है। उसमें भी यही चीज दिखाया गया है, लव एंड ड्यूटी, ड्यूटी फॉर द नेशन एंड लव फॉर क्लियोपेट्रा। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट डज ऑक्टेवियस से अबाउट एंटनी एंड क्लियोपेट्रा आफ्टर देयर डेथ, ऑक्टेवियस क्या कहता है एंटनी और क्लियोपेट्रा के बारे में आफ्टर देयर डेथ, उनकी मौत के बाद जो है। दे वर ट्रेटर्स टू रोम, वे रोम के जो है ट्रेटर्स थे। नो ग्रेव अपॉन द अर्थ शैल क्लिप इट इन अ पेयर सो फेमस, कह रहे हैं कि यही स्टेटमेंट है उसका कि नो ग्रेव
कोई भी कर्ब अपॉन द अर्थ, धरती पर, शैल क्लिप, उनको जो है क्या करेगी, धारण करेगी, इन इट अ पेयर, एक जोड़े के साथ, सो फेमस, जितना उनको प्रसिद्धि मिली। करें धरती पे बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन जितना प्रसिद्धि इस जोड़े को मिली मर करके या मरने के बाद किसी और को नहीं मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट डज क्लियोपेट्रा यूज टू डिस्ट्रैक्ट एंटनी ड्यूरिंग देयर अर्ली सीन्स टुगेदर। करें क्लियोपेट्रा क्या करती है एंटनी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, रास्ते से हटाने के, रास्ते से हटाने का मतलब उस दो तरह की उलझन में फंसा है, ड्यूटी फॉर द नेशन और उसका लव क्लियोपेट्रा के लिए। तो कहती क्या करती है डिस्ट्रैक्ट करने का एंटनी ड्यूरिंग देयर अर्ली सीन्स टुगेदर, शुरुआत में वह पोइट्री करती है, म्यूजिक एंड फीस्टिंग करती है, पॉलिटिकल डिबेट्स करती है, नो म्यूजिक एंड फीस्टिंग, यस, दावतें लोगों को देती है और तमाम तरह की म्यूजिक, डांस, आज दीज थिंग्स, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, what is the name of the pirate who allies with Sextus Pompey। कर उस पायरेटे का क्या नाम है जो गठबंधन करता है सेक्सस पॉम्पे के साथ, मिनास, वेरियस, स्केरस, टाउरसियस, मिनास, मिनास उसके साथ गठबंधन करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट डज एंटनी डू, एंटनी क्या करते हैं व्हेन ही बिलीव, जब वह विश्वास करते हैं क्लियोपेट्रा हैज बिट्रेड हिम विद थीडियास, कि क्लियोपेट्रा ने उनको धोखा दिया थीडियास के साथ। ही इम्प्रिजन हर, वह उसको इम्प्रिजन कर देते हैं। ही आर्डर्स हर एग्जीक्यूशन, वह जो है आर्डर देते हैं कि उसका जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाए, उसका हत्या कर दी जाए। ही हैज थीडियास विद, उन्होंने थीडियास को कोड़े मारे हैं। मेरे क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, व्हाट डज एंटनी डू, एंटनी क्या करते हैं व्हेन ही बिलीव, जब उनको विश्वास हो जाता है कि क्लियोपेट्रा हैज बिट्रेड, क्लियोपेट्रा ने धोखा दिया उन्हें, किसके साथ, थीडियास। उनको लगता है कि थीडियास और क्लियोपेट्रा ये दोनों लव में है, दोनों इंगेज्ड हैं, तो वो जो है क्लियोपेट्रा को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन एंटनी थीडियास को कोड़े मारते हैं। Here's Thedia's wept। क्वेश्चन नंबर 48 है, What does Cleopatra say, क्लियोपेट्रा क्या कहती हैं about her own nature in the play, अपने स्वभाव के बारे में प्ले में। I am a constant as the stars, मैं वैसे हूँ जैसे कि तारे हैं। I am fire and air, मैं फायर और एयर हूँ। I am bound to Antony's will, मैं एंटनी की इच्छाओं के से बधी हुई हूँ। I am Egypt's only hope, मैं केवल इजिप्ट की केवल एक उम्मीद हूँ। I am fire and air, मैं फायर, मैं क्वेश्चन को फिर से पलट रहा हूँ। क्वेश्चन ए कि व्हाट डज क्लियोपेट्रा से, क्लियोपेट्रा क्या कहती है अबाउट हर ओन नेचर, अपने स्वभाव के बारे में, उसका स्वभाव कैसा है। वो कहती है मेरा स्वभाव फायर और एयर जैसा है, जल्द से जल्द मैं गुस्सा होती हूँ और तुरंत तुरंत उसमें। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट डज ऑक्टेवियस डू, ऑक्टेवियस क्या करता है टू ऑनर एंटनी, एंटनी को सम्मान देने के लिए। ऑक्टेवियस क्या करता है एंटनी को सम्मानित करने के लिए और क्लियोपेट्रा को, आफ्टर देयर डेथ, उनकी जो है मौत के बाद। बिल्ड्स अ स्टैच्यू, स्टैच्यू बनाता है। आर्डर्स अ स्टेट फ्यूनरल, यस, वह आदेश देता है कि राजशाही सम्मान के साथ इन्हें दफनाया जाए। और जब तक लड़ाई झगड़ा था तब तक क्या करता था कि अगर जिंदा मैंने जो है उसको पकड़ा, किसको, क्लियोपेट्रा को, तो मैं उसका परेड रोम में कराऊंगा। लेकिन जब दोनों मर जाते हैं तो कहता है नहीं, इनको राजशाही सम्मान के साथ दफनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 50 है और टुडेज का लास्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर सर्वाइव्स क्लियोपेट्रा एंड क्लोजेस द प्ले विद अ ट्रिब्यूट टू हर। करेक्ट, कौन सा कैरेक्टर जो है जिंदा रहता है, सर्वाइव्स क्लियोपेट्रा एंड क्लोजेस, और प्ले का क्लोज करता है एक श्रद्धांजलि के साथ क्लियोपेट्रा के। ऑक्टेवियस सीजर, चार्मिया, यस, चार्मिया रिमेन्स अलाइव, और प्ले के लास्ट में वह जो श्रद्धांजलि देता है क्लियोपेट्रा को। सो इन दिस वे यू गॉट 50 questions. How many questions? You got 50 questions, and